پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ازلی اور ابدی خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے پاک اور پوتر نام میں مومنین کلیسا، آج پھر سے یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے آپ کی خدمت میں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں ان خوبصورت لمحات کے لیے، اور ہر بار یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے مجھے ایک اور موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس زندگی بخش کلام کو سیکھنے والا ہو سکوں، جو ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یقین جانیے، صرف آپ ہی نہیں سیکھ رہے، میں بذات خود اس کلام کو سیکھ رہا ہوں اور اس کے وسیلہ سے برکت پا رہا ہوں۔ اس بات کے لیے خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی کرائسٹ ویژن یورپ پر جتنی بھی دعائیں کی گئی اور پرستش ابھی کی گئی، ہمیں لائیو فیس بک پر آنے سے پیشتر میں اس کے لیے خدا کے لوگوں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک گیت جو ہمارے بھائی ندیم سردار نے گایا ہے، وہ آپ کو بتانے کے لیے اس کے بول کچھ یوں تھے کہ آسماں پہ شہر ہوگا، اور آپ نے شاید اس گیت کو اس سے پہلے بھی گایا بھی ہو، اور پاسبل ہے کہ آپ نے خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے یہ گیت سنا بھی ہو۔ اس گیت کے بول دہرانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ ہم چونکہ بائبل مقدس کی آخری کتاب یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کے 21 اور 22 ابواب میں سے سیکھ رہے بھی ہیں، اور خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم آئندہ سیکھیں گے بھی۔ ان 2 ابواب میں اس آسمانی شہر یروشلیم کی بات ہو رہی ہے، اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے گیت بھی گائیں گے اور سنیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم ان 2 ابواب سے اس نئے شہر یروشلیم کی خوبصورتی سے متعلق بھی دیکھیں گے۔ فی الحال ہم نے اتنا ہی دیکھا ہے کہ مقدس یوحنا فرماتے ہیں کہ میں نے دلہن کی طرح سجے ہوئے اس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھا، اور بہت کچھ اور وہ بتا رہے تھے۔ چاہیں آپ تو فیس بک پر سکرول ڈاؤن کریں یا میرے یوٹیوب چینل پر جائیں، ابدی بادشاہ، تو اس میں سے آپ کو اس بائبل سٹڈی جو اس سے پیشتر ہو چکی ہے، زیادہ تر آپ کو وہاں پر آن لائن مل سکتی ہیں۔ آپ برکت پائیں اور خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملے گا۔ اور پھر مقدس یوحنا اس آسمانی شہر جہاں خداوند خدا کی خود حضوری ہوگی، اس کے جلال کی بات کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے جہاں خداوند خدا بذات خود ہو، اس جلال اور خدا کی حضوری کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اس قدر اس کو بیان نہیں کر سکتا،
वो खुदा के लोग जो उस शहर में दाखिल होंगे, क्लियरली उनको वाज़े तौर पर यह सामने नजर आ जाएगा कि वो खुदा की हुजूरी में होते हुए खुदा के जलाल का मंजर वहां पर कैसा है। और हमने 11 आयत में इस बात को देखा था कि उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर संगे यशीब की सी थी, जो बलौर की मानिंद शफाफ और क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आपके साथ मिलकर मैं आयत 12 और 13 पर गौर करूंगा। यूं इस शहर की बाबत ही इससे बाद की आयात में भी हमें मिलता है, लेकिन इन 2 आयात को आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। गौर से सुनिएगा। मुकाशफा 21, 12 और 13 कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसकी शहर पनाह किसकी? उस नए यरूशलेम शहर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और 12 और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। हमने देखा कि मुकद्दस यूहन्ना मोहब्बत के रसूल उस नए शहर यरूशलेम का जो मंजर देखते हैं, जितने उनके पास अल्फाज थे उन अल्फाज में उसका बयान करते हैं। शहर की शहर पनाह भी है, 12 दरवाजे भी हैं, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते भी, और बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम, और फिर 3 दरवाजे आगे मशरक की तरफ, 3 मगरब की तरफ, 3 शुमाल की तरफ और 3 जनूब की तरफ खुलते हैं। ये 2 आयात बहुत मानाखेज हैं उन आयात की तरह जो इसके बाद हम देखेंगे, या वो जो पहले हम देख चुके हैं। याद कीजिए कि इन आयात में मुकद्दस यूहन्ना उस शहर यरूशलेम के मुख्तलिफ हिस्स की बात करते हैं, और उन हिस्स में से पहली बात जिस पर हम बात कर रहे हैं वो शहर पनाह है। शहर पनाह से मुराद उस शहर के चौगिर्द लगाई गई एक ऊंची, क्योंकि यहां पर लिखा है बड़ी और बुलंद शहर पनाह थी। इससे मुराद ये कि जैसे कोई 4 दीवारी होती है, उस शहर के चौगिर्द एक बड़ी शहर पनाह थी, 4 दीवारी थी, बुलंद और ऊंची और मोटी भी, जैसे हिजकियल के सहीफे में हम देखते हैं, और पैमाइश भी वहां देखते हैं, जो हम आगे बढ़ते हुए देखते चले जाएंगे, और अहद अतीक को भी हम देखेंगे, और रूहानी तौर पर हम टेस्ट देखेंगे कि अहद अतीक में भी क्या है। लेकिन अहम बात यह
کہ اس نئے شہر یروشلم کو ایک بڑی چار دیواری شہر پناہ، ایک پناہ کے لیے ایک دیوار نے گھیر رکھا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دیواروں کا عام طور پر مقصد تحفظ ہوتا ہے یا پروٹیکشن ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے، حفاظت کے لیے یا دفاع کے لیے۔ قدیم ادوار میں آپ جانتے ہیں کہ ان قدیم ادوار میں شہروں کے باہر بہت بڑی بڑی دیواریں ہوا کرتی تھیں، قلعہ نما۔ اور رومی دور میں اور اس سے بھی پہلے کی اگر بات کریں تو شہر کے تحفظ کے لیے ایک نہیں تین تین یکے بعد دیگرے دیواریں ہوا کرتی تھیں، ڈبل ٹرپل تحفظ کے لیے۔ اگر ہم پشاور، آپ میں سے کئی پشاور کے ہیں، یا لاہور، کئی لاہوری ہیں، فیصل آباد یا ملتان اور حیدرآباد بھی، یہ ایسے شہر ہیں جہاں قدیم جو آثار ہیں وہ آثار ابھی بھی ملتے ہیں، اور اگر آثار نہ بھی ہونا تو اس وقت کے ان دیواروں میں جو دروازے لگے ہوئے تھے، پھاٹک جو تھے، گیٹ جو تھے، ان کے نام سے آج بھی بازار قائم ہے۔ لاہوری دروازہ، کوہاٹی گیٹ اور فلاں فلاں فلاں، سارے مجھے ابھی نہیں آتے، لیکن آج بھی وہ شہر ابھی بھی بین اسی طرح سے تو نہیں، لیکن کئی آثار ابھی بھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح دیواریں ہوتی تھیں اور بڑے بڑے قلعہ نما شہروں کے تحفظ کے لیے یہ دیواریں بنائی جاتی تھی۔ اور انڈو پاک میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان میں قدیم ادوار میں ایسا ہوتا رہا، باقی ممالک میں بھی ہوتا رہا ہوگا، کیونکہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ آثار ہمیں کسی حد تک اس طرح کے ملتے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں میں کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اس شہر پناہ یا اس چار دیواری کے بنائے جانے کے پیچھے کیا یہ ریزن ہے کہ کوئی اس نئے یروشلم پر اٹیک نہ کرے؟ کیا اس شہر کے تحفظ کے لیے وہ فصیل یا دیوار بنائی گئی؟ آخر کیا ریزن ہے کہ کیوں ہم اس شہر پناہ کی بابت دیکھتے ہیں؟ علماء کے دو خیالات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ لٹرلی واقعی شہر پناہ ہوگی، کیونکہ آگے بھی ہمیں ویسے ہی نظر آتا ہے، اور یہ بات سمجھنے کے قابل بھی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، لیکن خیر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم جب بعد کی آیات دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لٹرلی واقعی دیواریں ہوں گی۔ اور اس کا مقصد یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ کوئی اس شہر پر اٹیک کر پائے گا، اس وقت تو کوئی اور ہوگا ہی نہیں۔ قوم بنی اسرائیل
मसीह खुदावन को जो पाए हुए होंगे वो 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। लेकिन इसके बाद जो ये शहर मुकद्दस है, इस शहर में दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ यानी खुदावन यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ होंगे, उसके साथ जिसके लिए मसीह ने सलीब पर अपना लहू बहाया है। ये दीवारें हमें ये तसव्वुर और ये कंसेप्ट देती हैं कि कोई जिसकी पाकीज़गी का मयार मसीह की बख्शी गई पाकीज़गी के मुताबिक नहीं, हमें पेशगी और एडवांस ये बताया जा रहा है कि कोई उस शहर में दाखिल नहीं होगा। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके नाम किताब में मिलेंगे। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। यह हमारे समझने के लिए है कि सिर्फ वही लोग उस शहर में होंगे जिनके जामे मसीह यीशु के लहू से धुले हुए होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं। और बाय द वे, यहां एक और रूहानी सबक इससे जरा हटकर आज मेरे लिए और आपके लिए भी है, और वो ये है, अगर हमने मसीह यीशु को पहना हुआ है, अगर हमने मसीह यीशु को अपना दिल दिया हुआ है, अगर हमने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया हुआ है, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हमारी है, तो फिर एक अहम तरीन बात और वो ये है कि अब हमें अपनी सोचों के चौगिर्द, अपने दिल के ख्यालों के चौगिर्द, अपनी नीयत और इरादे के चौगिर्द, इवन अपने जिस्म जो हमारा नहीं खुदावन का है, यह खुदा का मकदस है, रूहानी तौर पर एक नादीदनी दीवार हमेशा के लिए कायम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम इस दुनिया में हैं, हम अभी उस शहर मुकद्दस में दाखिल नहीं हुए हैं, और इस दुनिया में रहते हुए हमारा दुश्मन हम पर तीर फेंकता है, आतिशी तीर, हमारे ख्यालों पर, हमारी सोचों पर, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ऐसे वसवसे पैदा करता है, ख्याल पैदा करता है, नेगेटिव सोच पैदा करता है, गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश करता है, जिस सबब से जरूर है कि रूहानी तौर पर हम अपने चौगिर्द एक ऐसी नादीदनी दीवार खड़ी करें, खुदा के साथ अज़्म रासिख और मुसम्मब इरादा करते हुए कि अब इब्लीस का और उसके चेलों का कोई दाव मेरे खिलाफ ना चले। और हम में से कईयों ने माजी में इस दीवार को उस तौर पर कायम ना करने के सबब से मार खाई है। अब हमें होश के नाखून हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि यह दीवार गिरी रहे और जिसका मन करे इधर से होता फिरे। किसी ने किसी वक्त कहा कि गिर गई दीवार मेरे खस्ता मकान की, और लोगों ने इसे, मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन वो ये है, लोगों ने इसको फिर एक राह गुजर बना दिया, यहां से रास्ता बना दिया। तो ऐसा ना हो कि ख्यालात का काफिला और नेगेटिव सोचों का कारवां
इस में से होकर गुजरे। लाजिम है कि हम रूहानी तौर पर दुआ में खुदा के हुजूर अपने लिए एक प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ की दीवार खड़ी करें जो पाक रूह की तहरीक से हो। फिर लिखा है, इन शहरे पना और चार दीवारी और दीवारों के बाद इस आयत में कि उसके 12 दरवाजे थे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और फिर उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। जरा गौर से देखने की बात है कि मुकाशफा की किताब में 12 और 12 और 12 और 12 और 12 और फिर 12 का हिंसा हमें बार बार नजर आता है और आएगा भी। हम उस पर बात करेंगे और इससे पहले भी हम कई बार इन पर बातचीत कर चुके हैं। जैसे ये 12 दरवाजों की बाबत हमने अभी देखा है, सिर्फ पढ़ा है। 12 फरिश्तों के बारे में और फिर 12 कबाइल के बारे में जो बनी इसराइल के हैं हम देखते हैं। 12 बुनियादों के बारे में बाद में देखेंगे। और अगर माजी में देखें, खुदाबंद यीशु मसीह के 12 रसूल थे, शागिर्द जो रसूल हुए हैं। फिर हम मुकाशफा की किताब में 12 जवाहिर को देखेंगे, 12 फल देखेंगे, 12 महीनों से मुताल्लिक भी देखेंगे, 12 मोती देखेंगे। ये बार इस हिंद से का इस्तेमाल हुआ है और उसके पीछे कोई खास रीजन है। इस पर बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों पर से मुराद ये नहीं कि दरवाजे के ऊपर, चौखट के ऊपर फरिश्ता बैठा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि जैसे आज की दुनिया में मेन गेट या मेन एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड्स हम देखते हैं और वो ऊपर नहीं बैठे होते, खड़े होते हैं। और जो कुछ मुझे लगता है और जो कुछ स्टडी की है और उलमा का ख्याल है और कलाम भी कहता है, फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटीज हैं, खिदमत गुजार रूह हैं वो। अब खुदा की अपनी मर्जी है कि मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ ड्यूटीज और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां खुदा ने दी हुई हैं। इसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन उनका वहां खड़ा होना इस शहर के और हुस्न और खूबसूरती को बयान करता है। उनके पास कलाशनकोफ नहीं होगी, ना ही तलवार होगी, ना ही कुल्ला पहना हुआ होगा। खुदा बजाते खुद उनको वहां पर तैनात करते हुए नजर आते हैं और ये उस शहर की रौनक और खूबसूरती को और ज्यादा खूबसूरत और बेहतर तौर पर पेश कर रहे हैं। फिर इन दरवाजों पर यूं लगता है कि हर दरवाजा के ऊपर खास नाम है, एटलीस्ट एक नाम, और वो नाम बनी इसराइल के कबाइल 12 हैं और उन 12 कबाइल का 12 दरवाजों पर यके बाद दीगरे उनके नाम इन दरवाजों पर कंधा होंगे, लिखे हुए होंगे। इसकी क्या वजह है भाई? वजह यह है कि बनी इसराइल यहूदी लोग, ये वो लोग हैं
जिनके जरिया से खुदा ने मेरी और आपकी निजात का इंतजाम किया है। खुदावंद यीशु मसीह उसी लाइनेज से तशरीफ लाए ताकि मेरे और आपके गुनाहों के कुफारा हो। नजात गोया यहूदियों से आई है। खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने उस सोते में से भरा के नहीं भरा, यह और बात है, लेकिन अहम बात यह है कि नूर दुनिया में आया और तारीकी ने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि खुदा के इरादा से पैदा होते हैं। और यहां मैं यूं कहूंगा कि चूंकि निजात अहले यहूद में से आई है और हमने उस निजात को पाया है मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, जिस सबब से मैं एक लिहाज से यूं कहूंगा मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, हम यहूदियों के मकरूज हैं। कलीसिया यहूदियों की मकरूज है। हमें अहले यहूद का कर्ज, बाकी दुनिया का तो अपनी जगह पर हमारे सर पर है ही, लेकिन अहले यहूद का कर्ज यहूदियों के अपने तक निजात का पैगाम पहुंचाने के जरिया से ही उतारा जा सकता है। मसीह उनमें से आए और फिर निजात मसीह के वसीला से तो गोया उन्हीं में से आई। इंजील उन्हीं के वसीला से हम तक पहुंची और हमें मिली। और याद कीजिए, रसूल जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा उन्हीं में से थे। और इवन अहद अतीक के तमाम अंबिया उन्हीं में से आए हैं। जब मैं खुदा के कलाम में देखता हूं तो मुकद्दस पौलुस रोमियो के नाम खत और उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत में यूं कहते हैं, पहले बनी इसराइल के बारे में बात करते हुए फिर 10वें बाब की पहली आयत में, ऐ भाइयों मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ यह है कि वो निजात पाए। कौन? यहूदी लोग। और फिर जब मैं 11 बाब और उसकी 28 आयत को देखता हूं तो यहां पर यूं लिखा हुआ है, इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है। इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, यानी कबूल नहीं करते इंजील को, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं। खुदा उनसे प्यार करता है। सारी दुनिया उनके बरखिलाफ खड़ी होती रही, अब भी खड़ी है, लेकिन खुदा अपने लोगों का खुद मुहाफिज है। खुदा उनको प्यार करता है, वो चुनिंदा कौम है और लाजिम है कि इस निजात के लिबास से वो मलबूस हूं, जरूरी है। और इवन मैं यूं कहूंगा कि जो हमारी इब्तदाई कलीसिया थी या सबसे पहली कलीसा, उसमें गैर कौम में से कोई नहीं था। यरूशलेम की कलीसिया प्योर यहूदियों में से ही बनी थी। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप खिदमत गुजारी के काम में हैं, अगर आप पासबान हैं
या पास्टर साहब हैं या बिशप या वट, आज मैं और आप अपनी कलीसिया के रूहानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए पासबान, निगहबान और पहरेदार हों। यह जरूरी है ताकि कोई हमारी से मुराद वो भेड़ें जो खुदा ने हमारे स्पुर्द की है, हमारी नहीं है लेकिन हम उनके मुख्तार हैं, उन पर कोई भी बिदती अटैक ना करने पाए और कोई भी किसी भी सूरत में इन भेड़ों को खतरे से दो चार करने वाला ना हो। मैं और आप वो निगहबान हैं और सोचें कि हम आज इस जिम्मेदारी को सरंजाम देते हैं कि नहीं। दरबान हैं हम इस भेड़ खाना के, यानी कलीसिया के। अब बनी इसराइल के 12 कबाइल के नाम इन फाटकों और इन दरवाजों के ऊपर होने के लिए भी खास रीजन है और मैंने किसी हद तक उसकी बाबत बताया है, इसलिए कि खुदा अपने लोगों यानी कौम बनी इसराइल से प्यार करता है, उनसे उसका ताल्लुक है और खुदा उनको कभी भी नहीं भूलेगा। सारी दुनिया भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन खुदा उनको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए हम उन दरवाजों पर बनी इसराइल के कबाइल में से एक एक के नाम उन फाटकों के ऊपर, उन 12 दरवाजों के ऊपर हम देखते हैं और ये इस बात का इजहार है कि खुदा अपने लोगों कौम बनी इसराइल से प्यार करता है और उस शहर में वही लोग होंगे जिनके जामे मसीहा के लहू से धुले हुए होंगे। और फिर हम 13 आयत में जो मुख्तसर सी है कि मशरक, मगरब, शमाल और जनूब की तरफ चारों तरफ लिखा है कि 3-3 दरवाजे होंगे। गोया 4 तिये 12, 4 3s are 12। तो हर साइड पर गोया 3-3 दरवाजे होंगे और ये दरवाजे इसी बात की तरफ, ये वही दरवाजे हैं जिनकी बाबत हम पहले बात कर चुके हैं। ये दुनिया के मशरक व मगरब और शमाल और जनूब की तरफ इशारा है और अभी भी ये दरवाजे गोया इस बात की अलामत है कि अभी दरवाजा खुला है, आ जाओ, ईमान के जरिया तौबा और गुनाहों का इकरार करते हुए उसमें ईमान की रूह से दाखिल हो जाओ। केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए, अपना जीवन खुदावंद की नजर कर दो। ये दरवाजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं और इसके बाद हम 14वीं आयत से मजीद जब हम आगे देखेंगे तो यही बातें जिन पर हमने गौर किया और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी ताकि हम बेहतर तरीका से उस नए शहर यरूशलेम की बाबत अपने जहन में एक मंजर कशी कर सके रूहानी तौर पर कि वहां क्या क्या और किस किस तरह के उस शहर में खुदा ने अपने लोगों के लिए वादे किए हुए हैं और वहां क्या क्या होगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप ऑलरेडी मसीह खुदावन पर ईमान लाकर निजात पाए हुए हैं तो हालेलुया। लेकिन अगर मसीह खुदावन पर ईमान नहीं लाए कि वो एक रसूल थे, नहीं, कि वो एक नबी थे, बस दैट्स ऑल, नहीं 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 नहीं,
ये ईमान नहीं। वो इसमें कोई शक नहीं कि वो रसूल और नबी का किरदार अदा करते रहे जब जमीन पर थे, लेकिन मसीह खुदावंद सिर्फ नबी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान बतौर कुफारा दे चुके हैं। आप जो कोई भी है, आपका नाम भले जो कोई क्यों ना हो, किसी मजहब से ताल्लुक है या दहरिये है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहूंगा खुदा आपसे प्यार करता है और केवल इसके कि जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें आंसुओं के साथ, और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और फिर दरे दिल खोल दीजिए मसीहा के लिए कि वो इस दिल में आए और इसको वो अपना मकदस, अपना घर बना दे। और अगर आप में से कोई रेडी है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा अभी और इसी वक्त। जैसे आप चाहते हैं आप दुआ कर सकते हैं। मैं आंखें बंद किया करता हूं, लेकिन यह कोई एक ही बात और फर्ज नहीं कि आंखें बंद करके ही खुदा दुआ सुनता है। नो, कोई खास स्पेसिफिक तरीका बाइबल मुकद्दस में नहीं है कि बस इसी तरह से ही दुआ होगी, कोई और तरीका नहीं है। नो, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप चाहें अपने हाथ उठा सकते हैं, चाहें तो नहीं, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप ईमान के साथ इस दुआ में शरीक हो। ऐ खुदावंदे कुद्दूस, शुक्र करता हूं कि जो चीजें ना हमारे कानून ने माजी में सुनी और ना हमारी आंखों ने देखी, वो आपने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर रखी है। जलाल और इज्जत आपके नाम को मिले। और खुदावन, आज इस कलाम के मुवाफिक हमें अपनी रूहानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने का, कलीसिया का तहफ़्फ़ुज़ करने का, भेड़ियों से बचाने का फजल अनायत फरमाए। और खुदावंद, यह भी इल्तिजा करता हूं कि आज के कलाम के मुताबिक हमारे इन फेसबुक ग्रुप्स में या यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग है जिसने अभी तक अपने आप को आपके हुजूर झुकाया नहीं है। मिन्नत करता हूं कि पाक रूह की कुदरत से उसकी जिंदगी को तब्दील कीजिए, ताकि वह पूरे तौर पर अपने आप को आपके हाथों में दे और यूं इंतजाम इलाही के कबूल करने से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का हकदार बन सके। और खुदावन, मैं बड़े ईमान के साथ आज उन तमाम जरूरतमंद भाइयों बहनों के लिए भी दुआ करता हूं जो अपनी दुआया दरखास्तें लिख रहे हैं। आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। बीमार हैं तो उनको शिफा दीजिए। टेंशन और डिप्रेशन तले हैं तो अपना सुख और इत्मीनान और चैन उन्हें अनायत फरमाए। और अगर किसी भी तरह का कोई बहरान और फुकदान उनकी जिंदगी में है, यीशु के नाम से वो रिमूव हो जाए और अपने लोगों को अबदी सुकून और सुख और चैन बख्श दीजिए, क्योंकि मांगते हैं मसीह खुदावंद के जलाली और बुजुर्ग नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे और फिर यह खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर होगा, बशर्ते कि खुदावंद की मर्जी हो तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।